یہ کہانی علی بابا کی کہانی ہے اور یہ کہانی 1991 کی اس دور کی کہانی ہے جب علی بابا پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بچوں کے کھلونوں کو بیچ کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ شروع میں جب علی بابا نے اپنا کام شروع کیا تھا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو میرا اپنا گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر ہی بچوں کے کھلونے بیچ سکوں، لیکن جیسے جیسے ان کا کام بڑھتا چلا گیا تو انہوں نے سوچا کہ اپنے گاؤں کے علاوہ جو دوسرے گاؤں ہیں، خاص طور پہ جو قریب ریلوے پھاٹک موجود ہے، جسے آپ چھوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے بھی مجھے بچوں کے کھلونے بیچنے چاہیے۔ دن میں 3-4 ٹرینیں اکثر اس اسٹیشن پہ آ کے رکا کرتی ہیں، اور اگر کبھی کوئی خرابی ہو یا کوئی فیولنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو کافی دیر تک ٹرینیں اس اسٹاپ پہ یا اس اسٹیشن پہ رک جایا کرتی ہیں۔ اور یہ بڑی نارمل سی بات ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے۔ تو ایسے ہی کچھ خیالات علی بابا کی بھی تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جو قریبی ریلوے اسٹیشن موجود تھا وہاں جا کے کھلونے بیچنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی یہ مغرب کے ٹائم یا عصر کے ٹائم پہ فری ہو جاتے، لیکن جب کبھی کھلونے نہیں بکا کرتے تو ان کو رات تک وہاں پہ بیٹھ کے سارے کھلونے کے بکنے کا انتظار کرنا ہوتا۔ اور بات یہ بھی تھی کہ جب سارے کھلونے بک جاتے تو ان کے اچھے خاصے پیسے بچ جاتے ہیں۔ یوں آہستہ کر کے ان کے گھر کے جو حالات تھے، جو مشکلات تھیں، وہ دور ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ علی بابا بتاتے ہیں کہ ویسے ہی ایک سردیوں کی رات تھی، میرا خیال ہے کہ نومبر کا آخر چل رہا تھا یا دسمبر کا آغاز تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن پہ اپنے سارے کھلونے سیل کیے، اور سیل کرنے کے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو میرا خیال ہے کہ رات کے تقریباً 10 سوا 10 بجے کا ٹائم تھا، اور یہاں سے جو میرے گاؤں کا راستہ تھا وہ تقریباً 45 سے 50 منٹ پیدل کا راستہ تھا۔ بات یہ تھی کہ ایک تو راستے میں سردی بہت تھی، اور دونوں اطراف میں کھیت موجود تھے، یعنی درخت موجود تھے، تو آپ کو جو بیچ والا کچا راستہ ہے اس راستے پہ چل کے اپنے گاؤں کی طرف جانا ہوتا تھا۔ علی بابا بتاتے ہیں کہ میں اس کچے پکے راستے پہ چل رہا تھا کہ چلتے چلتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کسی نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے جیسے میں قدم رکھ رہا تھا ویسے کسی اور کے قدم رکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ اگر بات یہاں تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ دیر کے بعد پائل یا گھنگرو کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی۔ اب تو واضح طور پہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی میں جو بھی مجھے فالو کر رہا ہے وہ یقیناً کوئی عورت ہے یا صنف نازک ہے، جو مسلسل جب پاؤں رکھتی ہے تو اس کے پاؤں رکھنے پہ پائل یا گھنگرو کی آواز کانوں میں پراپرلی سنائی دیا کرتی ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ علی بابا بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے مجھے آواز آتی اور جب میں پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھتا تو مجھے اپنے پیچھے کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اسی طرح جب 4-5 مرتبہ کوئی مجھے دکھائی نہیں دیا تو اب میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھنا نہ صرف ترک کر دیا، بلکہ اب میں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دورانیے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے بہت ہی پیاری سی، خوبصورت سی، سریلی سی آواز میں میرا نام لے کے مجھے مخاطب کرنا شروع کیا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جو بھی مجھے مخاطب کر رہا تھا یا مجھے میرا نام لے کے پکار رہا تھا، اس کی آواز میں اس قدر درد تھا، اس قدر لذت تھی، اس قدر اٹریکشن تھی کہ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی نہ صرف پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، بلکہ عجیب بات یہ تھی کہ اب کی بار جب میں نے پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا تو میرے پیچھے ایسا لگا کہ ایک بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت لڑکی لال کلر کی ساڑی میں، جو کہ اس قدر بے باک تھی کہ اس کی ساڑی پہننے کے باوجود اس کا پورا جسم نمایاں طور پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ مجھے مسلسل نہ صرف فالو کر رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بار بار مجھے مخاطب کر کے مجھے روکنا چاہتی ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جو عورت تھی یہ نہ صرف حسین تھی، بلکہ اس کے بال اس قدر لمبے اور اس قدر بڑے تھے کہ جیسے جیسے وہ چل رہی تھی تو اس کے بال باقاعدہ زمین کو چھوتے ہوئے اس کو فالو کر رہے تھے۔ ایک عجیب سی بات تھی کہ یہ جو عورت تھی جس کا جسم مجھے نمایاں طور پہ نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی گردن کے پاس کوئی زخم یا کوئی مسئلہ ہے، یا شاید اس کی گردن میں سے خون رس رہا ہے۔ اب اس ویران سڑک پہ، سنسان راستے میں، گاؤں کے ماحول میں کوئی اس طرح کی بے باک عورت اگر آپ کو مل جائے اور آپ جوانی یا لڑکپن کی عمر میں ہوں تو یقیناً آپ سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں۔
ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। इन्होंने एकदम से जब पलट के उस लड़की को मज़ीद करीब से देखना चाहा तो वाकई में उसकी गर्दन से न सिर्फ खून रस रहा था, बल्कि अली बाबा बताते कि जब बिलाखिर मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके पैर उल्टे होने के साथ साथ जगह जगह से ज़ख्मी हो चुके हैं और उन ज़ख्मों से बाकायदा खून रसता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं जितना भी लड़कपन का शिकार था या जितनी भी जवानी मेरे अंदर जोश मार रही थी, लेकिन मैं इतना सेंसेस में ज़रूर था कि मुझे याद था कि मेरे बड़ों ने मुझे बताया था कि जब कभी रात में ख़ास तौर पे इस गांव के माहौल में सुनसान रास्ते में वीरान सड़क पे कोई इस तरह की औरत नज़र आती है और जब आप उसके पाँव की तरफ देखें और उसके पाँव उल्टे हों तो आपको ना सिर्फ पलट के अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देना है, बल्कि जो कुछ आपको दीन के मुताबिक आया करता है आपको उसकी तिलावत करना शुरू कर देनी है। और ऐसा ही हुआ कि मैंने मुसलसल जितनी भी कुरानी आयात सूरतें मुझे आया करती थी मैंने उनकी तिलावत करना शुरू की। और जब तक मैं अपने गांव अपने घर नहीं पहुंचा, मैंने वहां पहुंचने से पहले एक लम्हे के लिए भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। अजीब बात यह थी कि जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंचा तब तक मुझे फॉलो करने का एहसास हो रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मुसलसल कोई मुझे ना सिर्फ फॉलो कर रहा है, बल्कि अगर मैं ज़रा सा भी मुड़ के देखूंगा तो हो सकता है वो अपना हाथ बढ़ा के मेरी गर्दन को दबोच ले। मेरा नाम काशिफ है और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2003-2004 में जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था तो एकदम से देखते ही देखते जो मेरे फादर थे उनकी ना सिर्फ तबीयत ख़राब हुई बल्कि 15-20 दिन के इलाज के बावजूद वो देखते ही देखते इस दुनिया को छोड़ के अल्लाह ताला के पास चले गए। अब क्योंकि मैंने उस दौर में सिर्फ मैट्रिक कंप्लीट किया था तो मेरे लिए मज़ीद तालीम को जारी रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा था और मुझसे 3 छोटे बहन भाई मौजूद थे। खैर जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मेरी मदर मुकम्मल तौर पे अकेली हो चुकी थी और इसके साथ साथ अजीब बात ये थी कि जो हम लोग घर वाले थे वो एक ऐसे घर में रहा करते थे जो कि मुकम्मल तौर पे किराए का घर था। जैसे ही महीने का आखिर शुरू होता तो हम लोगों को परेशानी होना शुरू हो जाती और अल्लाह जानते हैं कि जैसे तैसे करके हम लोग किराए का इंतज़ाम किया करते थे। उन्हीं दिनों मेरी अपने दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि जो उसके फादर हैं वो बेसिकली पेंट का यानी जो कलर किया करते हैं उसका काम किया करते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे फादर के साथ ये जो कलर का काम है उसको सीख लो, क्योंकि इस काम में जब दहाड़ी लग जाती है तो एक साथ 10 या 15 हज़ार रुपये बन जाया करते हैं। अगर तुमने महीने में 2 या 3 इस तरह के काम कर लिए तो हो सकता है कि तुम्हारे भी 30 या 35 हज़ार आसानी से बन जाएं। अब जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे इस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाए तो मुझे लगा कि ये जो रास्ता है बिल्कुल ठीक रास्ता है। बहरहाल मैंने अपने दोस्त के अब्बू के साथ वो काम सीखना शुरू किया और देखते ही देखते 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मेरा काम इस कदर अच्छा हो गया कि अब बाकायदा मैं लोगों के घरों पे, लोगों के ऑफिस में अकेला जाके कलर किया करता और उससे मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में मौजूद था और वहाँ पे एक बंगले के अंदर कलर कर रहा था। आमतौर पे मेरी कोशिश होती थी कि जो भी काम है उसको दिन के औकात में कंप्लीट कर लूँ, लेकिन इत्तेफाक है कि 1-2 दिन बाद ईद आने वाली थी तो जो बंगले वाले थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि किसी भी सूरत ईद से पहले पहले ये काम मुकम्मल करना है। खैर वैसे ही मैं उस बंगले की छत पे मौजूद था और इत्तेफाक से जो मेरी नज़र थी वो बार बार सामने वाले बंगले पे पड़ रही थी। बज़ाहिर देखने से बहुत गंदा सा अजीब सा बंगला लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इस बंगले को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ था, बहुत सारे जाले मौजूद थे और उस बंगले की जो छत थी उसके ऊपर बाकायदा ग्रिल लगी हुई थी। खैर इसी दौरानिए में जबकि मैं उस बंगले की छत पे बार बार देख रहा था
एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो बंगले की छत है, उस छत के बिल्कुल आखिर में यानी कॉर्नर साइड पे शायद कोई औरत बैठी हुई है, और जो भी औरत वहाँ पे मौजूद है उस औरत ने ब्लैक कलर की चादर ओढ़ रखी है। अब पहले मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि चौकीदार की बीवी हो या कोई मुलाजिम हो जिसकी बीवी छत पे आई भी हो, लेकिन जब मैंने उस औरत पे मजीद गौर किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत का जो चेहरा है कुछ अजीब तरीके से जला हुआ चेहरा है, और उस औरत की जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। अब क्योंकि मुझे जो सामने का नज़ारा था वो नज़र तो आ रहा था, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था कि वाकई में उसकी जो आंखें हैं वो लाल हैं या फिर सरासर मेरा वहम है। अभी जबकि मैं उसके बारे में सोच रहा था या उसके चेहरे पे गौर कर रहा था, एकदम से उस औरत ने खड़े होके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं, यानी कि उसके पाँव की जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ मौजूद हैं और जो एड़ी है वो बज़ाहिर आगे की तरफ मौजूद है। बहरहाल मैंने जैसे तैसे उस औरत की तरफ देखना बंद किया और दूसरी तरफ देख के आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मुझे यकीन हो चला था कि सामने जो औरत मुझे नज़र आ रही है ये यकीनन इंसान नहीं है। और ऐसे ही हुआ कि जब मैंने पहली, दूसरी और फिर तीसरी बार आयतल कुर्सी की तिलावत की तो देखते ही देखते वो जो औरत थी ऐसा लगा गायब हो चुकी है। हालांकि छत के ऊपर ग्रिल लगी हुई थी, छत से बाहर निकलने का या कूदने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अगर आप सीढ़ियों की बात करें तो उन सीढ़ियों के सामने भी एक ग्रिल मौजूद थी और उस ग्रिल पे ताला लगा हुआ था। आज भी जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि एकदम से किसी भी रात वो चुड़ैल या पिछल पैरी न सिर्फ मेरे सामने आ जाएगी, बल्कि अगर हो सकता है कि वो दोबारा से मेरे सामने आए तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजान साहब बताते हैं कि ये जो वाक़या है ये 2003 का वाक़या है। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर चल रहा था और लाहौर के अंदर शदीद सर्दी हो रही थी। अब जो लोग लाहौर में या पंजाब में रहा करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि लाहौर के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और सर्दी के साथ साथ बहुत ज़्यादा धुंध हुआ करती है। तो अक्सर जो हम दोस्त थे वो कोशिश किया करते थे कि ख़ास तौर पे दिसंबर में या जनवरी में या तो कहीं घूमने चले जाएं या फिर अपनी इन सर्दियों को यादगार बनाने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि हम इस मौसम से भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। खैर वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने 3 दोस्तों के हमरा बाइक पे निकला। हम लोग बेसिकली मूवी देखने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर निकले थे और हमें धर्मपुरा यानी अपने इलाके में जाना था। हम लोग अपनी अपनी बाइक्स पे मौजूद थे और जैसे ही हम लोग मेन रोड के ऊपर आए तो मेरा एक दोस्त था जो कि शुरू से ही रेसर था और बहुत अच्छी बाइक चलाया करता था। जैसे ही वो रोड के ऊपर आया तो वो कहने लगा कि यार रोड खाली है, दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है, क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग रेस लगाएं। हालांकि मैं आमतौर पे रेस वगैरह इस तरह की चीज़ों से परहेज़ किया करता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया कि आज मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। खैर एक अजीब सी बात हुई और उसके बाद हम लोगों ने उस रोड पे उस धुंध के अंदर रेस लगाना शुरू की। अब जैसे ही हम लोगों ने रेस लगाना शुरू की तो देखते ही देखते एक के बाद 2 और 2 के बाद 3 मेरे 3 के 3 दोस्त मुझे छोड़ के बहुत आगे जा चुके थे। जाहिर सी बात है मैं एक डरपोक ड्राइवर था और मेरे लिए इतनी तेज़ बाइक चलाना मुमकिन नहीं था। ऐसा ही हुआ कि जब उन्हें आगे निकले हुए तकरीबन 4 या 5 मिनट गुजर चुके थे तो इत्तेफाक से जब मैं ठंडी सड़क के करीब मौजूद था तो मेरी बाइक एकदम से झटके लेके बंद हो गई। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कोशिश किया करता था कि बाइक की मेंटेनेंस टाइम पे कराऊं, कोशिश करूं कि इसके अंदर ऑयल या पेट्रोल वगैरह हर वक्त मौजूद हो।
लेकिन अल्लाह जाने उस रात क्या हुआ कि एकदम से मेरी बाइक ने झटके लिए और देखते ही देखते बंद हो गई। अब जब मेरी बाइक बंद हुई तो मेरे अतराफ में दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। खैर मैंने अपने तौर पे कोशिश की और लाख कोशिश के बावजूद जब मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने सोचा कि अब बाइक को खींचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हो सकता है कि रास्ते में इत्तेफाक से कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए या फिर कोई मैकेनिक नज़र आ जाए जो मेरी बाइक को ठीक कर सके। खैर इसी इरादे से जब मैंने ठंडी सड़क वाले रास्ते से, जो कि बहुत करीबी रास्ता था जिसको शॉर्टकट कह सकते हैं, अपनी बाइक को खींचना शुरू किया तो जो लोग लाहौर में रहा करते हैं उनको पता होगा कि ये जो ठंडी सड़क है इसके दोनों अतराफ में बांसों वाले दरख्त मौजूद हैं और आमतौर पे इस सड़क के ऊपर दिन में भी धूप नहीं आया करती। इसी वजह से इस सड़क को ठंडी सड़क कहा जाता है और यहाँ पे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मशहूर हैं। इसलिए आमतौर पे जो लाहौर के लोग हैं या अतराफ के जो भी लोग हैं वो कोशिश किया करते हैं कि मगरिब के बाद ख़ास तौर पे इस ठंडी सड़क से ना गुजरें। अब मेरे लिए क्योंकि ये शॉर्टकट था और मेरे लिए सबसे आसान रास्ता था तो मैं इस रास्ते पे चलता चला जा रहा था। इस रास्ते की एक तरफ एक नहरनुमा जगह मौजूद थी जबकि दूसरी तरफ कब्रिस्तान की दीवार लगा करती थी। अब जैसे जैसे इस धुन में मैं आगे बढ़ रहा था मुझे एकदम से लग रहा था कि जैसे सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या फिर हो सकता है कि जो मेरे कपड़े थे वो इस कदर नाकाफ़ी थे कि इन कपड़ों में सर्दी से बचना तकरीबन नामुमकिन था। बहरहाल जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे, यानी जहाँ पे नहरनुमा जगह मौजूद है, शायद कोई खड़ा हुआ है और जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है वो एग्जैक्टली बांसों के दरख्त के बिल्कुल नीचे मौजूद है। अब जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था जैसे कोई औरत जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और उस लिबास के साथ साथ उसने लाल कलर की शॉल या दुपट्टा ले रखा है, वो ना सिर्फ वहाँ पे खड़ी हुई है बल्कि जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुँचा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई है और किसी भी तरह किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। वाकई में जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुँचा और मैंने उसको बिल्कुल सामने से देखा तो उसने बाकायदा मेकअप किया हुआ था, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी थी और बज़ाहिर लग रहा था जैसे किसी तकरीब से या किसी शादी से वापस आ रही है। अब जैसे ही मैंने उस औरत को इस वीरान जगह पे इस तरह तैयार हुए हुए देखा तो जैसे कि हर नौजवान के जहन में मुख्तलिफ चीज़ें आया करती हैं, वैसे ही कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मेरे जहन में आना शुरू हुई। मैंने जानबूझ के बाइक को एग्जैक्टली उसके सामने रोका और रोकने के बाद उसकी तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल था कि ये कोई रिस्पॉन्स करेगी, मेरी तरफ देखेगी, हो सकता है ये भी कोई उल्टी सीधी औरत हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी वो लेफ्ट साइड पे यानी कि किसी और तरफ मुसलसल देख रही थी। हालांकि जहाँ पे वो देख रही थी वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैंने कुछ सेकंड के बाद उसको एकदम से मुखातिब किया और मैंने उससे पूछा, मोहतरमा कहाँ जाना है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। अब ये सुनने के बावजूद भी उस औरत ने किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूँ, इसको मुखातिब कर रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ कि इसको किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन अजीब औरत है मेरी बातों का जवाब देने के बजाय अल्लाह जाने मुसलसल किसको देख रही है। इसी तरह मैंने पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार उस औरत को मुखातिब किया। हालांकि मेरे अंदर या मेरे लुक्स में किसी भी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन उसका मुझे मुसलसल नज़रअंदाज करना ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तौहीन कर रही है। खैर जब 3 दफ़ा के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया तो एकदम से मेरे मुंह से गाली निकली, और जब मेरे मुंह से गाली निकली तो एकदम से उस औरत ने हंसना शुरू कर दिया। अजीब पागल औरत थी, मेरे गाली बकने पे हंसना शुरू हो चुकी थी, और जब मैं उससे इज्जत से बात कर रहा था तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। खैर जैसे ही उसने हंसना शुरू किया तो उसके अगले ही लम्हे वो एकदम से रोने लगी।
अब जब उसने हंसने के बाद एकदम से रोना शुरू किया तो मैंने उससे कहा कि भाई ऐसी क्या बात है कि अभी आप हंस रही थी और एकदम से रोना शुरू हो चुकी हैं। खैर उसके कुछ देर के बाद उस औरत ने मुझे रोते रोते बताया कि मैं यहाँ पे अपने शौहर के साथ गुजर रही थी कि एकदम से जो मेरे शौहर की बाइक है वो देखते ही देखते ख़राब हो गई। अब जब उनकी बाइक ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा किया और यहाँ पे खड़ा करने के बाद वो मैकेनिक की तलाश में आगे निकल गए। मैं पिछले 2 या 3 घंटे से मुसलसल उनका वेट कर रही हूँ और मेरी समझ नहीं आ रहा कि बिला आखिर वो कहाँ चले गए हैं। ये कहने के बाद उस औरत ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। अब जब उसने दोबारा से रोना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद ये राइट टाइम है कि उससे बात को बढ़ाया जाए और उसको किसी भी तरीके से बहाना बना के अपनी बाइक के ऊपर पीछे बिठाया जाए। मैंने उसको कहा कि आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ बाइक पे बैठें और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि आगे कोई मैकेनिक की दुकान मौजूद हो तो आपके शौहर वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हों। हालांकि मेरी जो अपनी बाइक थी वो खुद भी ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उस औरत को अपने पीछे न सिर्फ बिठा लिया बल्कि अपने पाँव के ज़रिए अपनी बाइक को आगे करने की कोशिश करता रहा। अजीब बात यह थी कि जब वो औरत मेरे बिल्कुल पीछे बैठी तो मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी बाइक वहाँ से ना ही मूव कर पा रही थी और ना ही मैं इस काबिल था कि उस औरत को दोबारा से उतरने का बोलूं। एक अजीब कन्फ्यूजन थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हालांकि वो जो औरत थी उसका इतना ज़्यादा वज़न नहीं था। अच्छा, साथ साथ एक और बात थी कि जैसे ही वो औरत मेरी बाइक पे पीछे आके बैठी थी तो कुछ अजीब सी चंबेली की सी खुशबू थी जो मुझे आना शुरू हो चुकी थी। अब काफ़ी कोशिश के बावजूद जब ये जो बाइक थी वहाँ से नहीं हिली तो मैंने एकदम से उस औरत को बोला कि अगर बुरा ना माने तो मेरे साथ पैदल पैदल आगे चलें। अब जैसे ही मैंने उस औरत को इस तरह से बोला तो उस औरत ने एकदम से अजीब से तरीके से हंसना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो तंजिया तरीके से हंस रही है और मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही है। इसी दौरानिए में जबकि वो हंस रही थी तो मैंने पीछे पलट के जब उसकी तरफ देखना चाहा तो सबसे पहले मेरी नज़र उसके हाथों पे पड़ी। मैंने देखा कि उसके जो हाथों की उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी पतली पतली सी उंगलियां हैं और ऐसा लग रहा है कि उसके जो हाथ हैं उन पे जो नाखून मौजूद हैं या तो उन नाखूनों में चोट लगी हुई है या फिर हो सकता है कि उसके नाखूनों से खून टपक रहा हो। अब जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो ये मंजर देखने के बाद मेरे ऊपर कपकपी सी तारी होना शुरू हो गई। मुझे लग रहा था कि जिस औरत को मैंने अपने पीछे बिठा लिया है यकीनन मैंने कोई गलती कर दी है। खैर मैंने जब मुकम्मल तौर पे पलट के उसकी तरफ देखा तो इससे पहले कि मेरी नज़र उसके चेहरे की तरफ पड़ती, जब मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी तो उसके जो पाँव थे कुछ अजीब तरीके से टेढ़े पाँव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं और इसके साथ साथ अजीब बात ये थी कि उस औरत की जो एड़ियाँ थीं ऐसा लग रहा था जैसे वो आगे की तरफ हैं जबकि उस औरत की जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं। अब जैसे ही मुझे अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो मुझे यकीन हो चला था कि आज मेरा सामना किसी चुड़ैल या फिर पिच्छल पैरी से हो चुका है। अल्लाह जानता है कि मैं कैसे उस बाइक से बाहर निकला हूँ और मैंने एक झटके से बाइक को ज़मीन के ऊपर फेंका है। जितना तेज़ रफ्तारी से मैं भाग सकता था मैंने उस ठंडी सड़क पे न सिर्फ भागना शुरू किया बल्कि जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थीं मैं इस पूरी ठंडी सड़क पे मुसलसल उनकी तिलावत करता रहा। बहरहाल जैसे तैसे करके जब मैं इस ठंडी सड़क के आखिर में पहुंचा तो मेरे सामने से इत्तफाक से एक पुलिस की मोबाइल आ रही थी। अब जैसे ही उन पुलिस वालों ने मुझे भागते हुए देखा या फिर मुझे परेशानी के आलम में देखा तो उन्होंने एकदम से ना सिर्फ अपनी मोबाइल को रोका बल्कि उसमें से 2 पुलिस वाले उतर के मेरे पास आए। उनका यह ख्याल था कि हो सकता है कोई चोर डाकू मेरे सामने आ चुके हों जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। खैर जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक चुड़ैल या पिच्छल पैरी को मैंने ठंडी सड़क पे देखा है और मेरी जो बाइक है वो वहीं पे पड़ी हुई है
اگر ہو سکے تو آپ میرے ساتھ واپس چلیں اور جا کے دیکھیں کہ میری بائک خیریت سے وہاں پہ موجود بھی ہے یا نہیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ جو پولیس والے تھے وہ نہ صرف میرے ساتھ واپس گئے بلکہ اس پولیس موبائل کے اندر جو ASI بیٹھا ہوا تھا وہ خود بھی مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہا۔ جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ وہ عورت تو موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری جو بائک جو کہ نئی بائک تھی وہ خیریت سے وہاں پہ موجود تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے جب میں اپنی بائک کو اسٹارٹ کر کے اپنے گھر پہنچا تو مجھے لگ رہا تھا مجھے 102 103 بخار ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ٹھنڈی سڑک ہے یا یہ جو راستہ ہے اس راستے پہ اکثر رات کے اوقات میں وہی چڑیل یا وہی پچھل پیری نظر آیا کرتی ہے اور وہ لوگوں سے مختلف طریقوں سے لفٹ مانگنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ اگر آپ کا بھی اتفاق سے رات کے اوقات میں اس ٹھنڈی سڑک سے گزر ہو تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ وہاں سے گزرنے والے ہوں تو کوشش کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کے یا پاک صاف ہو کے وہاں سے گزریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی رات آپ کا سامنا اسی چڑیل سے یا پھر اسی پچھل پیری سے کسی بھی وقت ہو جائے۔